We extend a very warm welcome to all the viewers, to all the elite academicians and the distinguished students from the GH Raisoni University. I regret for the belated start to the program because due to weather conditions and due to network lagging, we could not start on the given time. But we thank all the viewers for being patient with us and now being on the line. So, dear viewers, uh, at the outset, I express my sincere gratitude to the Honorable Chief Patron, Shri Sunil Raisoni sir, the Patron Vice Chancellor, Dr. Meena Rajesh, the Honorable Registrar, Shri Ram Joshi sir, and the Honorable Dean, Dr. Suhas Sakarkar sir, for granting us kind permission to arrange this program and giving all their kind guidance to arrange this program for the institute. Friends, before we start the proceedings of the meeting, I request all of you that please be seated comfortably at a place because due to present weather conditions, you may face little network issues and please have your headphones with you so that you may listen the entire session, so also you may experience the blissful and joyful experiment of the meditation which we would be conducting at the end of the session. Friends, we all know that presently we are surrounded with such a situation that we all are one or other way concerned with our immunity, with our wellness, and managing the stress which every one of us has in a different manner. But how beneficial it would be if we have such a method with us which can have a scientifically proven base, which would be easy to practice, which will have a long lasting effect on our brain, on our mind, on our physique, so also on our work culture. We also point out that Sahaj Yoga meditation technique is a kind of technique which stands to the scrutiny of all these tests. And we assure you that at the end of today's session, you also would experience that there is something which provides a dynamic flow of energy within you. We all call Sahaj Yoga a cognitive science, a science which every individual can have a cognizance of. With his little sincere efforts, everyone can take cognizance of such interesting branch of science. So, to start with, I just want to point out that today's session would be dedicated in two sections. First one would be an informative session covering very interesting information about the dynamic energies within us. And it would be followed by a short meditational experience wherein you would have a very blissful, joyful flow of dynamic energy within. So friends, now let's start with the PowerPoint presentation. I request my technical team members to focus on the PowerPoint presentation which we have, and I equally request all of you to have your kind attention to the PowerPoint presentation. So friends, let's see what is going on with the present life scenario of all our student friends. So what are we doing in our institutes? We all know that we are completing our respective courses. We are willing to have a nice job so that we can have a nice startup to our professional life. We are preparing ourselves for the corporate arena and the deadly race of the corporate arena. We are learning
to maintain our personal and family, professional and social life. So that's the last point is rather a bigger challenge because along with our corporate life, along with the challenges in our life, we have to learn and to maintain our personal, family and professional and social life. So it's very interesting and important for us. Let us see some more important things in our life. So these are the forthcoming challenges in our life. What are these challenges? Every one of us know. The monster of the global recession in the market, the privatization, which some says that it's a boon, some say it's a bane, but still we have to face it. We have the ever-changing policies of the employers. Now, being a lawyer by profession, I personally know that with the situation of this pandemic, there have been changes in the policies of the employers and constant changes. Even I have personally received the calls from so many clients that they have been facing the difficulty of changing policies of the employers and they are facing the aftermath of it. So that's one of the challenge facing the changing policies of the employers. Then there is a lack of government sector recruitment. There is enormous saturation in every sector over the years. And last but not the least, and therefore it has been pointed out in the red letters that it's a pandemic situation, it's a pandemic situation which causes all the above points, which causes all the above reasons. So, friends, these are some of the crises in our life, the forthcoming crises which cause stress. Now, apart from that, we have some other crises. Let's move on to the next slide. These are the present life distractions. पहले के जमाने में ऐसा कहा जाता था कि षड ऋतु होते हैं, 6 दुश्मन होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। पर अभी के जमाने में यदि हम देखें, हमारी प्रेजेंट डे लाइफस्टाइल यदि हम देखें, तो इसमें कुछ और जुड़ गए हैं। ये सब आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं कि जाने अनजाने यदि हम ना भी चाहें तो भी ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी लाइफ में आते हैं और ये डिस्ट्रैक्शंस हमारी काफी सारी वाइटल एनर्जी, हमारा प्रेशियस टाइम, ये सब कुछ कंज्यूम कर जाते हैं। चाहकर भी हम इससे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाते। सो दीज आर सम ऑफ द डिस्ट्रैक्शंस इन अवर लाइफ। Then let's see some more challenges which may cause stress to a student's life. The next slide, please. The lethargy and the poor concentration. For all our life as a student, we face these as a major obstacles in our performance, the lethargy and the poor concentration. Some more challenges. We suffer from weak memory. Some of our friends may have this problem. And at the end, when we come out in the market as a prepared graduate, as a prepared professional, then stage fear is one of the obstacles because we may be storehouse of the knowledge. We may have the entire compact prepared knowledge with us, but unless we have the proper expression, unless we have the proper expression of the things we have, unless we have the proper skill of advertising ourselves, then we are facing the major lacuna. So stage fear is another difficulty for us. Now we have the distinguished academicians with us online. So there are certain obstacles, there are certain challenges in the life of academicians also. So let's see the next slide. What are these challenges in the life of academicians? With the changing science and technology, there is ocean of information available. And everyone say that on a click of a simple button, there is ocean of information available for everybody. But in this scenario, if anybody says that importance of an academician, importance of a mentor, importance of a teacher has gone down, personally I do not agree with it. The justifiable reason or a logical reason one can cite is that
Academicians are the real magicians who work out the pearls of knowledge out of the ocean of information. So there may be an ocean of information available to us, but we are enriched with the knowledge. And only the academicians who, with their magical sight, rather matured sight, can provide us the pearls of knowledge. But the academicians face difficulty and stress when things are superimposed upon them on the reason that students are indisciplined or they are imitating the fashion, they are having the craving to earn money without more efforts, and that's where the educational policy is not delivering what is expected from it. ये सारी चीजें जब एकेडमिशियंस के सामने रखी जाती है तो सहजता से ही उनके ऊपर सारी चीजें मर दी जाती है कि perhaps the educational policies are not being implemented by the academicians properly. Therefore, the society is facing this scenario. कुछ और challenges academicians के ऊपर आती हैं जब educational policies change होती है, employers की service conditions change होती है और consistently हायर एक्सपेक्टेशंस उनसे रखी जाती है कि आप क्वालिटी रिजल्ट्स को डिलीवर करें, आप करियर ओरिएंटेड प्रोफेशनल एजुकेशन डिलीवर करें, ताकि जो भी बच्चा या जो भी स्टूडेंट आप मार्केट में फ्लोट करें एज अ ग्रेजुएट, ही शुड बी केपेबल इनफ टू earn his bread and butter on his own as per the requirements of the present market. Now there are certain additional challenges to the academicians. जब भी आपकी इलेक्शन ड्यूटी होती है या किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में आपको इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी की तरह यूज किया जाता है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पर डाल दी जाती है, तब आपका काफी सारा कंस्ट्रक्टिव एनर्जी इन सारी इम्प्लीमेंटिंग एज की। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द रिजल्ट्स ऑफ दीस चैलेंजेस अपॉन द एकेडमिशियंस। दे ऑलवेज फेस अ टग ऑफ वॉर बिटवीन देयर प्रोफेशनल लाइफ एंड देयर पर्सनल लाइफ। एकेडमिशियंस को इन दोनों चैलेंजेस को डील करना होता है। अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जो रिजल्ट्स उन्हें डिलीवर करने होते हैं, जिसके कारण स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है, उसके कारण उन्हें इनसफिशिएंट टाइम होता है अपनी फैमिलीज के लिए, पर्सनल हेल्थ प्रॉब्लम्स कंसिस्टेंटली लगी होती है, उनकी खुद की हॉबीज या कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड ये तो काफी दूर की चीजें रह जाती है। सो दैट अफेक्ट्स देयर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो एंड दैट कॉजेस अ स्ट्रेस। नाउ लेट्स सी some more challenges which we have ahead. The next slide, please. Now, all these things causes a stress. और stress के कारण क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। स्ट्रेस के कारण हमारी हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है, नींद ठीक से नहीं आती है, काफी सारे साइकोसोमैटिक डिजीजेस के लक्षण हमारे अंदर दिखने लग जाते हैं। So the question number one, what are the effects of the stressful life? ये आप सब लोग जानते हैं और इस पिक्चर में देख रहे हैं, पर जो बचे तीन क्वेश्चंस हमारे सामने हैं, फ्रॉम वेयर डज द स्ट्रेस कम फ्रॉम, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द स्ट्रेस एंड हाउ डू वी बिकम इम्यून टू द स्ट्रेस। इन तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आज के इस सेशन में डील करने वाले हैं। सो लेट्स सी वेदर द स्ट्रेस कम फ्रॉम एंड व्हाट आर द रूट्स ऑफ द स्ट्रेस। द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो वेयर डज द स्ट्रेस कम फ्रॉम? द स्ट्रेस कम्स विद इन अस from within, and it's not something which is superimposed upon us from the outside, because the things, the situations, the problematic people were there, they are there, and they would be there. The situations won't change, but it's our inner perception. It's the thing that how do we perceive the world, how do we perceive the situation around us, and how do we tackle it. That depends everything, and that reflects everything, that whether we are suffering from the stress or not. And if we are mature enough to perceive the things properly, then the outside world would change for us, then there would be no stress. So let's see how to deal with it. Next slide, please. As we all know that all our historical and cultural references, almost in all the human cultures, it is said that better we should improvise ourselves by knowing ourselves properly. If we better understand ourselves through our inner personality and we establish our inner harmony with the external demands, with the external challenges that we have, then we are all set to deal with the situation.
And we can easily deal with the situation if we have a solid foundation to our inner strength, so that we can deal with all the external challenges. So let us see how to know ourselves and how to deal with the outer situation. I request for the next slide, please. So see what the Sage Yoga meditation works out in us. How does it help us to know ourselves, and how does it work to strengthen ourselves? आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग यदि घड़ी का 1 मिनट भी लगाकर रखते हैं तो उस 1 मिनट में कितने सारे थॉट्स हमारे अंदर पास्ट से चलते रहते हैं, कितने सारे थॉट्स हमारे अंदर पास्ट में घूमते रहते हैं, पास्ट फ्यूचर इन सारे थॉट्स में हम लोग जुड़ते रहते हैं। पर यदि हम लोग प्रेजेंट में आ जाए, ये प्रेजेंट में कैसे आएंगे? ओनली विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन। And how we will work it out the present? We will work out the present with our meditation. We will work out the present with our energy. So this is what actually the meditation do with you. When you meditate with the technique of Sage Yoga, you enjoy the blissful state of meditation with all your energies. And in state of meditation, you are neither in the past, you are neither in the future, but you enjoy the blissful state of your energies in present. And let me tell you, this present situation is entirely thoughtless. So, in sum and substance, one can say that meditative state can be achieved, or one can say that you have entered into the meditative state only when you have achieved the state of thoughtless awareness. Now, friends, let me assure you that in today's practical experience, you would enjoy, you would experience, and you would feel that blissful state of the meditation. Now let's see the further slide, please. So what are the benefits if we enter into the meditative state and we enjoy our thoughtless experience? Let's see what are the general benefits, and particularly what are the benefits of your corporate life. In general, as a byproduct, the meditation helps you to improve your mental health, your physical health, your emotional health. It establishes the peace, joy, and satisfaction within. You become discreet. You take your own decisions. You take your own wise actions without being depending upon the situations, without being depending upon the persons around you. And I would not say it's a byproduct, it's rather a main product of the present age, that many incurable diseases can be cured with the help of meditation. How? That I will share with you in the coming slides. Now, what are the corporate benefits? What are the benefits in our corporate life from the meditation? We work better because we have an enhanced productivity. We have improved interpersonal relations with each other. So, while working in a team, we have nice relations with the people. We know how to handle people around. We have optimized productivity because meditation gives you a dynamic energy, a flow of energy, which you can use in your personal and professional life. The attitude becomes less cynical and more constructive. We become ethically practiced. Now, ethics can't be discussed. You would experience this ethical practice in your behavior when you would adopt to the meditation technique. You deal effectively with the pressure situation. See, this dealing effectively with the pressure situation is the major output of the meditation, which is the need of the hour in the present situation. And we become dynamic and we become creative. So these are all benefits. Let's move further. Now, whatever I have shared with you, I initially said that it's a scientifically proven meditation technique. So where are the acknowledgement? Where is the recognition? The University of Delhi has accepted Sage Yoga meditation as a subject of study. I share with you with the utmost happiness and with a delightful intention that the Delhi University has conferred doctorate upon 2 of our doctors who have researched, and they had submitted the research project to the university for the purpose of curing or treating the psychosomatic diseases with the help of meditation technique. Even treating the
patients of epilepsy and likewise diseases with the Sahaja Yoga meditation technique. And after going through the research, the Delhi University has conferred the PhD upon the doctors submitting the research papers. The researchers in the Lady Hardinge Medical College, Delhi, and various hospitals in the United States and Russia have been researching upon the meditation technique, and they have been using this technique for treating their patients. Even the Indian Medical Association has accepted Sahaja Yoga as an alternative medicine for psychosomatic diseases. The International Hospital Research Center that we have in Mumbai, there we treat the patient for epilepsy, migraine, diabetes, and even the chronic patients like cancer with meditation technique along with the medicine. So, simply with the help of medicine, the patient takes some time, but with the help of meditation technique along with the medicine, they have better results, stronger results, and they develop the strong immunity power to their diseases. Now let's see the next slide. Let me introduce to the founder of the meditation technique, Dr. Nirmala Devi Srivastava. She is worldwide known as Shri Mataji. She was born in 1923 and she was associated with the Honorable Father of the Nation during the freedom struggle. And she was a student of medical science, the student of medicine and psychology. She studied in the Lahore Medical University, which is now situated in Pakistan. She was nominated for the Nobel Peace Prize twice, and she was awarded with the Manav Ratna by the Government of India. Apart from it, various civil honors were conferred upon Shri Mataji in India as well as abroad. She was even conferred with the doctorate with the University of Romania, and she was in the year 1970, she established this technique of meditation for the emancipation of the human being. I share with you that at present, more than 150 countries in the world are practicing the meditation sessions of Sahaja Yoga, and they are all one in practicing this session. Next. So far as the field of education is concerned, Shri Mataji has a definite vision. उनका ये कहना था कि इंसान की जो अपब्रिंगिंग है, इंसान का जो जीने का तरीका है, वो उसकी शिक्षा पर काफी गहरा असर छोड़ता है. सो इसलिए शिक्षा के बारे में श्री माताजी ने एक सिद्धांत सभी के सामने रखा कि एक स्ट्रेस फ्री, फुल ऑफ एनर्जी एंड स्पॉन्टेनियस एंथुसियास्टिक लर्निंग यदि हो, सो दैट कैन बी अ बेस्ट लर्निंग एंड इवन बेस्ट टीचिंग. इस एक्सपेरिमेंट को समूचे विश्व के सामने रखने के लिए श्री माताजी ने 3 मेजर इंस्टीट्यूट्स दुनिया में स्थापन करी. पहला धर्मशाला में, हिमाचल प्रदेश, इटली में रोम और राजस्थान में जयपुर. और मुझे आपसे ये शेयर करने में बड़ा आनंद हो रहा है कि ये तीनों इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इंडियन कल्चर, इंडियन लाइफस्टाइल और मॉडर्न डे करिकुलम के साथ में पढ़ रहे हैं. दे आर कमिंग आउट विद द फ्लाइंग कलर्स इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. So friends, let's start with the details of the meditation technique. Now you can see, आपके स्क्रीन पर आप एक चार्ट देख रहे हैं. एक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर बना हुआ है और साथ में ही आपके अंदर जो न्यूरल सिस्टम है जिसके बारे में अभी हम जानेंगे, वो न्यूरल सिस्टम किन बॉडी ऑर्गन्स के साथ में कोरिलेट करता है और कैसे हमें उससे न्यूरल प्लेक्सस से एनर्जी मिलती है, ये भी हम इसमें देख रहे हैं. The first that we can see, हमारे इस ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर में इसका सारा कामकाज हमारे अंदर न्यूरल प्लेक्सस पर चलता है, नर्वस सिस्टम पर चलता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारे अंदर होता है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. एक जो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम जो एंटायरली हमारे हार्ट का फंक्शन देखता है, एंड द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. अब इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम which is principally described and distributed in 3 parts. इस डायग्राम में जो आप देख रहे हैं वो लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ब्लू कलर के चैनल में आपको यहां सिग्निफाई किया गया है. This is called as left sympathetic nervous system in the terms of medical science.
और योग की भाषा में हम इसे ईड़ा नाड़ी कहते हैं। राइट साइड में जो आप देख रहे हैं इन येलो कलर, दिस इज अ राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसे हम मेडिकल साइंस में इसे हम योग की भाषा में पिंगला नाड़ी कहते हैं। और सबसे बीच में जो आप देख रहे हैं उसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स के साथ में किस तरह से ये न्यूरल सिस्टम कोरिलेट करता है। जो लेफ्ट साइड में आपको ब्लू कलर का चैनल दिख रहा है, दैट इज द लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये हमारी इमोशनल पर्सनालिटी को रेगुलेट, कंट्रोल और बैलेंस करता है। हमारे अंदर जो विल पावर होती है वो एंटायरली इसी चैनल से जनरेट होती है, इसी चैनल से रेगुलेट और कंट्रोल होती है। अब ये विल पावर हमारे अंदर यदि धीरे धीरे कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप लोग जानते हैं हम लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। सो जो लोग बहुत ज्यादा पास्ट के थॉट्स में इन्वॉल्व रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया, या जो लोग बहुत ज्यादा अपने सराउंडिंग सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, या जो लोग बहुत ज्यादा लोगों को ब्लेम करते हैं, अपने बैकग्राउंड को ब्लेम करते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज और इवेंचुअलिटीज उनके पास में अवेलेबल है उसको ब्लेम करते हैं, they always depend upon their left side, rather I would say कि वो अपनी लेफ्ट साइड की एनर्जीज को धीरे धीरे वीक करते रहते हैं। और ये एनर्जी धीरे धीरे जैसे वीक होते जाएगी वैसे वैसे हमारे अंदर की विल पावर कम होते जाती है। और इसका लास्ट एक्सटेंट वो होता है जब व्यक्ति जीने में ही विश्वास नहीं करता, वो अपने आप को खत्म कर देता है। आप सब लोग जानते हैं कि रिसेंटली हमने एक बड़े नामी गिरामी फिल्म स्टार को खोया है, जिसने एक बड़े महान व्यक्ति का बायोपिक बनाया, एक बड़े महान स्पोर्ट्स पर्सन का बायोपिक बनाया, सारी दुनिया को उसने प्रेरित किया। मगर खुद की लाइफस्टाइल में, खुद की लाइफ में जब उसने स्ट्रगल को फेस किया, तब सिचुएशंस के सामने वो टिक नहीं पाए और उन्होंने अपने आप को खत्म करने में ही अपनी एंड ऑफ लाइफ समझ गया, एंड देन वी लॉस्ट हिम। सो द लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम गेट्स अफेक्टेड इफ we are blaming the people, if we are involved emotionally more with the people around than what is required, यदि हम डिप्रेसिव थॉट्स में चले जाते हैं, या हमारे अंदर बहुत पास्ट के थॉट्स आते हैं, या हमारे विल पावर कम है। बट आई अश्योर यू दैट इन अ मेडिटेटिव स्टेट, इफ यू मेडिटेट रेगुलरली, तो आपकी ये जो लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या ईड़ा नाड़ी है, ये रेगुलरली क्लीन होते रहती है, एंड इट कीप्स यू ऑलवेज अपडेटेड विद योर विल पावर। Now let us see the reverse side. जो पिंगला नाड़ी हमारे अंदर है, जो राइट साइड में हमारे अंदर एनर्जी चल रही है, ये हमारी इंटेलेक्चुअल पावर या हमारी पावर ऑफ थिंकिंग, और पावर ऑफ एक्टिंग अपॉन द थिंग्स, ये सारी हमारी फिजिकल रिदम, हमारी इंटेलेक्चुअल पावर, हमारी थिंकिंग पावर, एनालिटिक पावर, उस सारी चीजों को ये कंट्रोल, उन सारी चीजों को रेगुलेट और बैलेंस करता है। सिंपली ये चैनल उन लोगों का बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट या वीक होता है जो बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक होते हैं, मोर देन व्हाट इज रिक्वायर्ड। वो हमेशा काम काम और काम के सिवा और दूसरा कुछ सोचता ही नहीं। दे हैव नो इमोशनल फीलिंग्स, दे हैव नो इमोशनल अटैचमेंट इवन विद देयर फैमिली मेंबर्स। और इतने ज्यादा वर्कहॉलिक होने के कारण वो बहुत ज्यादा व्हाट आई कैन से डिक्टेटरशिप इनके अंदर आ जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि दे आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग, दे आर कंट्रोलिंग द सिचुएशन, एंड इफ दे डू नॉट कंट्रोल द सिचुएशंस then they get panic, और वो बहुत ज्यादा भड़काऊ स्वभाव के हो जाते हैं। So this is entirely balance and imbalance within left and right. So we are much blessed by the nature or by the Almighty कि हमारे अंदर ये जो बीच का चैनल बना हुआ है, the parasympathetic nervous system within us, जो हमारे अंदर बीच में लगा हुआ है, ये parasympathetic nervous system, जिसे योग की भाषा में सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है, ये हमारे अंदर इन दोनों चैनल्स की एनर्जीज को बहुत सुंदर तरीके से बैलेंस करती है। इन अ स्टेट ऑफ मेडिटेशन, जब हमारी एनर्जी इन तीनों चैनल्स में से फ्लो होना शुरू हो जाती है, तब लेफ्ट में हम एक स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले, एक बैलेंस्ड इमोशन वाले पर्सनालिटी बन जाते हैं। राइट साइड में, यानी राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज्ड पर्सनालिटी हु कैन डील विद द मल्टीटास्किंग इश्यूज। और बीच में आपको छोटे छोटे फ्लावर्स जैसी डायग्राम्स इस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या सुषुम्ना नाड़ी पर दिख रहे हैं। These are called as the neural plexus. इनको न्यूरल प्लेक्सस कहा जाता है।
और योग की भाषा में ही हम इसे चक्र कहते हैं। देखिए कितना सुंदर एक संगम हमारे इंडियन कल्चर एंड मॉडर्न मेडिकल साइंस में लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि सबसे निचले छोर पर आप एक उल्टा ट्रायंगल देख रहे हैं। ये हमारे जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी, उसके सबसे निचला छोर है, जिसे मेडिकल साइंस में सैक्रम बोन कहते हैं। सैक्रम माने सैक्रेड, पवित्र। इसे सैक्रेड बोन कहा जाता है क्योंकि इसी के अंदर हमारे अंदर एक एनर्जी कॉइल फॉर्म में बैठी हुई रहती है। चूंकि कॉइल माने सर्कल, जिसको हिंदी भाषा में वर्तुल, वर्तुलाकार या गोलाकार, और संस्कृत भाषा में कुंडल कहते हैं, इसे इस एनर्जी को कुंडलिनी शक्ति कहा गया। बड़ी सरल भाषा में बताएं तो ये शक्ति इन अ फॉर्म ऑफ मदर एनर्जी हमारे अंदर होती है। जब हम ध्यान करते हैं तब यही एनर्जी ऊर्ध्वगामी माने ऊपर की ओर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पावर फ्लो होती है और हमारे पूरे न्यूरल सिस्टम में, हमारे जो न्यूरल प्लेक्सेस है, उन सब में ये अपनी एनर्जी फ्लो करना शुरू करती है। जब इन न्यूरल प्लेक्सेस पे एनर्जी फ्लो होना शुरू होती है तब हर एक न्यूरल प्लेक्सेस से कनेक्टेड जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हमारे हैं, उन सारे बॉडी ऑर्गन्स को ये प्यूरिफाई करती है। ग्रेजुअली सारे बॉडी ऑर्गन्स धीरे धीरे प्यूरिफाई होते हैं और हमारे शरीर में जितनी भी उनसे जुड़ी हुई व्याधियां हैं, जितने भी रोग हमारे अंदर हैं, जितने भी डिजीजेस हैं, वो धीरे धीरे पूरी तरीके से वाइप आउट होते हैं। सो फिजिकल लेवल पर तो हमें ये प्यूरिफाई करती है, पर स्ट्रेस से डील करने के लिए, हमारी पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये कैसे काम करते हैं? तो जिस तरीके से मैंने पहले बताया, लेफ्ट में विल पावर, राइट में इंटेलेक्चुअल पावर, जिसको ये इंप्रोवाइज करती है। हर एक प्लेक्सस में, हर एक एनर्जी सेंटर में कुछ बहुत सुंदर डायनामिक एनर्जीज हमारे अंदर बनी हुई है। सो सबसे पहला एनर्जी सेंटर, लेट अस सी, द फर्स्ट एनर्जी सेंटर इज मूलाधार चक्र, जो हमारे सबसे नीचे बना हुआ है। जब हम जमीन पर बैठते हैं तो हमारा सिटिंग पोस्चर जहां पर आता है, वहां पर ये पहला चक्र बना हुआ होता है। इसे साइंटिफिक लैंग्वेज में या मेडिकल साइंस के लैंग्वेज में इसे पेल्विक प्लेक्सस कहते हैं। और फिजिकल लेवल पर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड्स, देन हमारे अंदर के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, उन सब में, सो फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न, उनके वोम, इन सारी चीजों को ये कोरिलेट, रादर रेगुलेट और उनको हेल्दी रखने का काम करता है। जब पेल्विक प्लेक्सस के काम में कुछ गड़बड़ आती है, बिकॉज ऑफ अवर हेक्टिक लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ अवर लाइफस्टाइल व्हिच कॉजेस डेंजर टू अवर लाइफ, आफ्टर इफेक्ट्स टू अवर लाइफ, तो हमें पाइल्स या हेमोराइड्स, इस तरीके से काफी तकलीफें हमें हो जाती है और एक्सक्रीटरी ऑर्गन से भी रिलेटेड तकलीफें हमें हो जाती है। पर ध्यान में यदि हमारा पेल्विक प्लेक्सस या मूलाधार चक्र जब स्ट्रेंथन होता है, तब धीरे धीरे इन ऑर्गन्स से ये तकलीफें पूरी तरीके से दूर हो जाती है, हमारी अच्छी इम्यूनिटी हमारे अंदर डेवलप होती है। Now on a personality level, what is the benefit of मूलाधार चक्र? आपके अंदर जो ग्रास्पिंग पावर होता है, आपके अंदर जो क्लैरिटी ऑफ विजन होती है, जो क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है, वो इस मूलाधार चक्र के कारण एनहांस होता है। सो अ पर्सन हु मेडिटेट्स रेगुलरली, मूलाधार चक्र प्यूरिफाई होने के कारण उसके अंदर एक क्लैरिटी ऑफ थॉट, क्लैरिटी ऑफ विजन, नाइस ग्रास्पिंग पावर, ये सारी चीजें स्पॉन्टेनियसली डेवलप होना शुरू हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपके अंदर आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसका एक डिस्क्रीट सेंस आपके अंदर डेवलप होता है। नाउ यू ऑल नो, एट अ क्लिक ऑफ अ बटन वी हैव ऑल सॉर्ट्स ऑफ एंटरटेनमेंट अवेलेबल। बैक टू वर्स, सारे तरीके के एंटरटेनमेंट हमें नेट पर अवेलेबल है ऑन अ सिंगल क्लिक ऑफ द बटन। पर हमारी आंखों ने क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इन पर भी कभी कभी हमारा कंट्रोल नहीं होता है। बट व्हेन यू मेडिटेट, you have a nice control over these things. You develop a satsang vivek buddhi that we call in the Sanskrit language. Now let's see the next energy center, that is Swadhisthana chakra. This is the aortic plexus within us. ये आपके लीवर के फंक्शन को, आपके पैनक्रियास को संभालता है, आपके लोअर एब्डोमेन को संभालता है। इन फीमेल्स इट लुक्स आफ्टर द यूटेरस, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है। और पर्सनालिटी लेवल पर ये हमारे अटेंशन या यूं कह सकते हैं हमारा कंसंट्रेशन, उसको स्टेबल रखने में काम करता है। हम सब लोग इस डिफिकल्टी को फेस करते हैं कि क्लासरूम में बैठे रहेंगे या किसी प्रोजेक्ट में लगे रहेंगे, लेकिन दिमाग कहीं और चलते रहता है, बिकॉज अवर अटेंशन इज नॉट स्टेबलाइज्ड। बट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, with the improvisation of Swadhisthana chakra and aortic plexus, we have a nice meditation within us, and therefore we have an improved attention, we have improved concentration. एक छोटा एग्जांपल यदि मैं बताऊं
तो एग्जाम के दिनों में हम लोग काफी देर तक पढ़ते रहते हैं, काफी लंबे समय तक हम पढ़ते हैं। कंसिस्टेंटली हमारा लीवर जो इस स्वादिष्टान चक्र से या आयोटिक प्लेक्सस से रेगुलेट होता है, जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये लीवर फैट सेल्स को कन्वर्ट करके ग्रे मैटर के फॉर्म में हमारी ब्रेन को एनर्जी प्रोवाइड करता है। जो लोगों का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल काम का है, जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थॉट्स प्रोसेस एंड बहुत ज्यादा वर्कहॉलिक नेचर है, धीरे धीरे उनका लीवर और पैनक्रियाज अफेक्ट होने के कारण दे डेवलप द डायबिटीज, एंड वी ऑल नो व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज। बट इफ वी मेडिटेट and our pancreas, our Swadhisthana chakra and our liver improves, then to a larger extent we can get rid of diabetes, we can have a healthy lifestyle even if we are suffering from the diabetes. Then next move on to the next chakra, that is Nabhi chakra, जिसे सिलैक प्लेक्सस या सोलर प्लेक्सस कहा जाता है। ये हमारे अंदर हमारी स्प्लीन, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा स्टमक और एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारे अंदर होता है उससे उसके सारे ऑर्गन्स को ये संभालता है। और हमारे अंदर जो नर्वसनेस होता है किसी भी काम को शुरू करने से पहले, इंटरव्यू फेस करने से पहले, एग्जाम को फेस करने से पहले, जो नर्वसनेस हमारे अंदर होता है उस नर्वसनेस को पूरी तरीके से ड्राई आउट करने का काम ये नाभि चक्र हमारे अंदर करता है। स्पॉन्टेनियसली हमारी पर्सनालिटी एक धीर, गंभीर और एक स्टेबल पर्सनालिटी हमारी डेवलप होती है। इस नाभि चक्र के इर्द गिर्द आपको जो हरे रंग का गोलाकार दिख रहा है, दिस इज ऑल्सो अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी विद अस। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन हमारे अंदर जैसे काम करने लगता है विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन, देन वी बिकम आवर ओन गुरु, वी कैन से वी बिकम आवर ओन गाइडर, वी बिकम द मेंटर ऑफ आवर ओन, वी टेक आवर ओन डिसीजंस। करियर में यही तो एक सबसे ज्यादा चैलेंजिंग चीज होती है कि हम अपने खुद के डिसीजंस कब क्या लेते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन वी इम्प्रोवाइज दिस क्वालिटी विद अस। नेक्स्ट The cardiac plexus, अनाहत चक्र। आज के जमाने में या पेंडेमिक के जमाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये चक्र है, बिकॉज दिस डील्स विद अवर फिजिकल इम्यूनिटी। हमारे अंदर जो एंटीबॉडीज काम करती है वो एंटीबॉडीज इसी कार्डियक प्लेक्सस की वजह से जनरेट होती है। आप जानते हैं कि इस कार्डियक प्लेक्सस हमारे हार्ट, सेंट्रल हार्ट के पास में एक स्टर्नम बोन हमारे यहाँ होता है, जहां रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स डेवलप होती है और पूरे बॉडी में वो सर्कुलेट होती है। यदि ध्यान करके आपका ये कार्डियक प्लेक्सस या अनाहत चक्र स्ट्रांग होता है तो आपको जनरली वायरल इन्फेक्शंस नहीं होते हैं, छोटे छोटे वायरल इन्फेक्शंस आपको टच भी नहीं करते हैं और आपकी फिजिकल इम्यूनिटी अच्छे से बनी हुई होती है। सो इट वुड बी ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर अस इफ वी मेडिटेट रेगुलरली। द नेक्स्ट इज द विशुद्धि चक्र व्हिच डील्स विद अवर सर्वाइकल प्लेक्सस। आपके गले के पास में ये होता है। It deals with the ear, nose and throat। माने आपके ENT ऑर्गन्स को ये देखता है, उनको रेगुलरली ये प्यूरिफाई करता है। साइनसाइटिस, देन रनिंग नोज, ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स जिन लोगों को होती है उनके लिए ये पूरी तरीके से उस प्रॉब्लम को वीड आउट कर सकता है। पर्सनालिटी लेवल पर इस चक्र का बड़ा इंपॉर्टेंट स्थान है, क्योंकि आपका जो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, पावर ऑफ कम्युनिकेशन है, वो इसी चक्र के कारण इम्प्रोवाइज होता है, प्यूरिफाई होता है। आपका जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, आपका जो मैनर ऑफ एक्सप्रेशन है, वो इसी के कारण डेवलप हो सकता है। सो आप यदि स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज है, जैसे मैंने पहले कहा गया था, पर यदि आप अपने आप को एडवर्टाइज करना नहीं जानते, सो इट्स अ मेजर लैक्यूना दैट कैन बी ओवरकम बाय दिस विशुद्धि चक्र, इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द विशुद्धि चक्र। इवन इन व्हाइल वर्किंग इन अ टीम आपको विशुद्धि चक्र बड़ा काम करता है। आपको जो आपका स्पिरिचुअल क्वोशंट कहा जा सकता है या इमोशनल क्वोशंट आपका जो कहा जा सकता है, वो इस विशुद्धि चक्र के कारण अच्छे से डेवलप होता है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एनर्जी सेंटर, दैट इज आज्ञा चक्र। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेफ्ट, राइट और सेंट्रल चैनल दो तीनों यहाँ पर क्रॉस हो रहे हैं। काफी सारी गर्मी हमारे शरीर में इस जगह पर निर्माण होती है और हमारा जो ऑप्टिक ग्लोब है या ऑप्टिक चैस्मा या यूं कह सकते हैं कि ऑप्टिक थैलेमस, इन सारे फिजिकल ऑर्गन्स को ये आज्ञा चक्र या ऑप्टिक चैस्मा एनर्जाइज करने का काम करता है। हमारी आईसाइट को अच्छा रखने का, इंप्रोवाइज करने का काम ये ऑप्टिक थैलेमस करता है या आज्ञा चक्र करता है। प्रोफेशनल लाइफ से इसका बड़ा करीब का ताल्लुक है। कुछ लोगों को एक तकलीफ होती है बार बार गुस्सा आने की और गुस्से पर कंट्रोल न कर पाने की। दैट कैन बी ओवरकम टू अ लार्जर एक्सटेंट विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन
if we are improvising our आज्ञा चक्र. इवन टेम्परामेंटल हम कभी कभी हो जाते हैं और हम बार बार कह देते हैं कि अभी तो काम करने का मूड नहीं है या अभी मूड चेंज हो गया है. तो ये जो सारे मूड स्विंग्स हमारे अंदर आते हैं इन्हें हम ओवरकम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेडिटेशन इफ आवर आज्ञा चक्र इंप्रूव्स इन मेडिटेशन. नाउ द लास्ट, द सहस्त्रार चक्र, दैट इज द लिम्बिक एरिया. आप सब जानते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब हमारा ये जो लिम्बिक एरिया होता है वो पैल्पिटेशन करते रहता है. उसी जगह पर हमारा ये सहस्त्रार चक्र है. मेडिकल साइंस में ये कहा जाता है कि यदि हमारा ब्रेन यदि हम खोलकर देखें तो 1000 नर्व्स जैसे उल्टी रखी हुई हो या उल्टी लगाई हो उस तरीके से हमारा ब्रेन का स्ट्रक्चर है. सो हमारा सहस्त्रार चक्र इसे कहा जाता है. दैट इज 1000 द एनर्जी सेंटर हैविंग 1000 पेटल्स. मेडिटेशन जब हम करते हैं we try to meditate on this last energy center because this last energy center establishes this synthesis between all the energy centers. ध्यान में जब हम सहस्त्रार चक्र पर थॉटलेस पोजीशन में चले जाते हैं तब एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है. आई रिपीट, एनर्जी का फ्लो हमारे अंदर रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाता है. और ये रिफ्लेक्शन आप आज इस समय एक छोटे से एक्सपेरिमेंट के साथ फील कर सकते हैं. कैसे फील कर सकते हैं? आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि हमारे हाथों में कुछ कलर्स बने हुए हैं. आपके हाथों में वही कलर्स बने हुए हैं जो हमारे अंदर जो न्यूरल प्लेक्सस पर लगे हुए हैं. माने हमारे हाथ सारे न्यूरल प्लेक्सस को, सारे चक्रों को इंडिकेट करता है. तो आप हाथ की एनर्जी के फ्लो पर ही जान सकते हैं कि आपका कौन सा न्यूरल प्लेक्सस ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है. कैसे जान सकते हैं? तो मेडिटेटिव स्टेट में आपके हाथों में से ठंडी, शांत, शीतल लहरें बहने लगती हैं, जिसे कॉस्मिक एनर्जी वगैरह वगैरह अलग अलग नामों से साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है. ये एनर्जी आपके हाथों में से, हाथ के पाम में से और आपके लिम्बिक एरिया के ऊपर से बहती हुई आपको फील होती है, जो आज आप फील करने वाले हैं. इस एनर्जी का फ्लो आना, इसका एक्सपीरियंस आना ही ये सिग्निफाई करता है कि यू हैव एंजॉयड द ब्लिसफुल, जॉयफुल स्टेट ऑफ मेडिटेशन. Now I request all of you that let's try this experiment with all of us. एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है 4-5 मिनट का, जिसके एंड में आप लोग एक एनर्जी, इस एनर्जी के फ्लो को एक्सपीरियंस कर पाएंगे. तो इसके लिए हमें क्या करना है? लेट्स सी. हम इस नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं. हमें क्या करना है? तो यदि आप आराम से एक जगह बैठ जाएं, जैसा मैंने पहले अपील किया था, इफ यू कैन हैव द हेडफोन्स, तो हेडफोन्स को लगा लीजिए, क्योंकि सराउंडिंग साउंड आपको नहीं आएगा तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी. या यदि आप धरती मां पर बैठे हैं तो बहुत अच्छा है. यदि आप चेयर्स पर बैठे हैं तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखें कि आपके दोनों पांव खुले हो. यू शुड बी बेयरफुटेड और आपके दोनों पांव मदर अर्थ को टच करते रहे, ताकि अर्थिंग आपकी बॉडी को पूरे तरीके से मिलते रहे. अब मेडिटेशन की शुरुआत में हम लोग क्या करेंगे? वी विल हैव अ शॉर्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसमें हम लंबा और गहरा श्वास अपने अंदर लेंगे, 1 सेकंड के लिए रुकेंगे और धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास हम लोग छोड़ेंगे. इसे करते वक्त हम हमारा सारा कंसंट्रेशन अपने श्वास पर ही लगाएंगे, क्योंकि आप अपनी श्वास पर जितनी गहराई से, जितनी हम्बलनेस के साथ, जितनी सिंसियरिटी से आप कंसंट्रेट करेंगे, उतना आप मेडिटेशन के लेवल प्लेइंग फील्ड में आते जाएंगे. क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइज नॉर्मली अच्छे से करने के कारण आपका ब्लड प्रेशर, आपका अटेंशन, आपका हार्ट बीट का स्पीड, ये सारा धीरे धीरे पूरे तरीके से स्टेबलाइज हो जाता है. और जहां आपका अटेंशन स्टेबलाइज हुआ वहां आप मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं. सो लेट्स प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर द मेडिटेशन. देन नेक्स्ट जो भी करना है आप पहले चीज को देख लें, उसके बाद में हम लोग इसे करेंगे. सबसे पहले हम हमारा राइट हैंड अपने हृदय पर रखेंगे. आप पहले से देख लें, बाद में इसे आपको करना है. हार्ट पर हाथ रख के हम एक छोटा सा अफर्मेशन लेंगे. नाउ सिंस दिस एनर्जी ऑफ कुंडलिनी इज इन फॉर्म ऑफ अ मदर विद इन अस, सो हम लोग एक सिंपल प्रेयर कह सकते हैं कि ओ मदर, आई एम अ प्योर स्पिरिट. बट दीज वर्ड्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड. आप जिस भी बिलीफ सिस्टम को बिलोंग करते हो, आप किसी भी कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन को बिलोंग करते हो, तो आप उसे भगवान कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, परवरदिगार कहें, जिस भी नाम से आप उसे पुकारना चाहें आप कह सकते हैं. और आप इस अफर्मेशन को लें. अब एक चीज मैं आपको यहां जरूर शेयर कर दूं.
जितना सिंसियरली, जितना हम्बलनेस के साथ, जितना ऑनेस्टली आप इन अफर्मेशंस को लेंगे, आपके एनर्जी सेंटर उतना स्पॉन्टेनियसली इग्नाइट होते जाएंगे और वो आपको रिस्पॉन्ड करना शुरू करेंगे. बिकॉज वी ऑल नो दैट एवरीथिंग दैट इज ट्रू स्टार्ट्स विद द हार्ट. सो यू नीड टू पुट इन योर हार्ट इन द थिंग्स. सो पहला अफर्मेशन, राइट हैंड ऑन योर हार्ट. यहां पर हम कुछ अफर्मेशंस लेंगे. नेक्स्ट स्टेप, लेट अस सी. इसी हाथ को, पूरा हाथ फ्लैट करके आपको आपके माथे पर रखना है, ऑन द फोरहेड. और आपको आपकी गर्दन थोड़ा सा विद अ लिटिल हम्बलनेस आपको आगे झुकाना है. इस चित्र में भले ही वो नहीं दिखाया गया है, बट स्टिल आई वुड रिक्वेस्ट कि आप आपकी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और उसे देखें. हाँ, आंखें आपको बंद रखनी है और गर्दन को आगे की ओर झुका लें. देन द लास्ट, हाँ, यहाँ पर जो हमें एक अफर्मेशन लेना है कि ओ डिवाइन मदर, आई फॉरगिव एवरीबडी इंक्लूडिंग माई सेल्फ. देन द लास्ट वन, हमें इसी राइट हैंड को अपने तालू भाग पर रखना है. हम हमारे हाथ को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे और राइट हैंड को तालू भाग पर रखेंगे, हल्के से दबाएंगे जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, इस स्लाइड में दिखाया गया है. और हल्के से दबाते हुए, गर्दन को थोड़ा झुकाते हुए, हाथ को धीरे 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 गोल गोल घुमाएंगे. कितना बार घुमाना है? बस 7 से 8 बार, पर इसको काउंट न करें. आप अपने मेडिटेटिव स्टेट को बनाए रखें, इसे काउंट न करें. एंड एट दैट टाइम यू वुड रिक्वेस्ट, ओ डिवाइन मदर, प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन. सो इट्स दीज आर वेरी सिंपल प्रेयर्स which I would be sharing with you जब आप आंखें बंद करके बैठ जाएंगे. और सबसे अंत में आपको क्या करना है, तो आपको आपका यही रखा हुआ हाथ नीचे गोद में ले लेना है. 10 से 15 सेकंड्स शांति से बैठना है. 10 से 15 सेकंड्स आपको शांति से बैठना है. और जब मैं कहूं तब आपको यही हाथ फिर से अपने सर के ऊपर लेकर के 1 इंच थोड़ा सा ऊपर पकड़ के देखना है. 1 ही इंच आपको बस इसी पोजीशन में से 1 इंच हाथ ऊपर पकड़ के देखना है, ताकि आप आपके लिम्बिक एरिया से फ्लो होती हुई एनर्जी को फील कर सकें. उसके बाद एक और स्टेप मैं आपसे शेयर करूंगा कि आपको दोनों हाथ सीधे हवा में ऊंचे ऊपर उठाने, जैसे अंपायर सिक्सर सिग्निफाई करता है, उस तरीके से आपको दोनों हाथ सीधे हवा में ऊंचे उठाने हैं. और अपने ही आप मन ही मन आपको एक प्रश्न स्वयं से पूछना है कि ओ डिवाइन मदर, इज दिस द एनर्जी, इज दिस द डायनेमिक एनर्जी विद इन मी. इस क्वेश्चन को आप 3-4 बार अपने आप से पूछें और धीरे 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 दोनों हाथ वापस ला करके फिर से गोद में रख दें और 10-15 सेकंड आप रहें. तो ये सारी स्टेप्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताते जाऊंगा, वैसे वैसे आप करते जाइए. सो लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेटिव प्रोसेस. नाउ we will have the slide of Shri Mataji on the screen. So Shri Mataji is, by way of her picture, she is present here. और it's a part of our culture. जब भी हम कोई नया टेक्निक किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं, so we have a little humble attitude towards the expert of the technique. So let's be little humble towards Shri Mataji, and let's request her, Shri Mataji, please guide me for today's meditations. The technique of meditation that you have invented, please guide me. एक छोटा सा रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं. श्री माता जी, आज के ध्यान के लिए कृपया आप हमें मार्गदर्शन कीजिए. जो मेडिटेशन का साइंस आपने पूरे विश्व को सिखाया है, उसके बारे में प्लीज हमें भी इस एक्सपीरियंस से अवगत कराएं. सो लेट्स स्टार्ट विथ द मेडिटेशन. वी विल ट्राई टू प्ले अ ट्यून ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. एंड क्योंकि शास्त्रीय संगीत जो होता है वो हमें मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है. So we will play a meditative शास्त्रीय म्यूजिक. एंड जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जा रही है, उन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से सुने और वैसे ही आप मेडिटेट करना शुरू करें. सो लेट्स स्टार्ट. आप जहां भी बैठे हैं, दोनों हाथ जैसे इस डायग्राम में दिखाए गए थे उस ह्यूमन बॉडी चार्ट में, उस तरीके से दोनों हाथ अपनी गोद में रख लें. हाथों की सारी उंगलियों को खुला रखें. नाउ वी आर एक्सपीरियंसिंग the state of meditation. We are rather preparing ourselves to experience the state of meditation. So we will start with the breathing exercise. अब आप सभी कृपया आंखों को बंद कर दें, क्योंकि यदि आप आंखें खुली रखेंगे तो आपका अटेंशन इधर उधर डोलता रहेगा.
आप स्क्रीन की तरफ देखेंगे, कुछ बाहर से साउंड आएगा उसकी तरफ आप देखेंगे, एंड यू वुड गेट डिस्टर्ब, एंड देन यू विल नॉट बी able to enjoy the inner flow of the energy. So please close your eyes and unite yourself to your inner being. आंखों को बंद करें, धीरे से लंबा और गहरा श्वास अपने अंदर लें। 1 सेकंड के लिए अपने श्वास को पकड़ के रखें और धीरे धीरे लंबा और गहरा श्वास छोड़ देंगे। ये करते वक्त अपना सारा अटेंशन, सारी कंसंट्रेशन अपने श्वास पर लगाएं कि आप लंबा और गहरा श्वास ले रहे हैं, आप 1 सेकंड रुके हैं और धीरे धीरे आप अपना श्वास छोड़ रहे हैं। आपका अटेंशन जितना अपनी श्वास पर रहेगा, आप मेडिटेशन में उतने गहरे उतरते जाएंगे और एनर्जी का फ्लो एक्सपीरियंस करने के लिए आप रेडी होते जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द ब्रीदिंग। बंद रखकर 7 से 8 बार हमें लंबे और गहरे श्वास को लेना है। अब धीरे से आप सभी लोग अपना राइट हैंड अपने हृदय पर रखें। तो प्लीज पुट योर राइट हैंड ऑन योर हार्ट और अपना सारा कंसंट्रेशन अपने हार्ट में लगाएं। प्रयास करें कि आपका सारा कंसंट्रेशन अपने हार्ट में हो। Now with all our sincerity and humility, let's pray to the energy within the form of Mother within us. Let's say this affirmation that, O Divine Mother, I am a pure spirit. हे परमेश्वरी माँ, मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। इस अफर्मेशन को बड़े आराम से 10 से 12 बार आप सुकून से इसे करें। इसी अफर्मेशन को हम थोड़ा मॉडिफाई करके we will affirm to the expert of the meditation technique, Shri Mataji, I am a pure spirit. श्री माताजी, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। 2-3 बार इसे करें।
अब धीरे से राइट हैंड को उठा करके राइट हैंड का पूरा पाम, पूरी हथेली अपने फोरहेड पर, अपने माथे पर, जहां हम कुमकुम या टीका लगाते हैं वहां रखें, हल्के से दबाएं और धीरे से गर्दन को थोड़ा आगे की ओर झुकाएं। Now with utmost humility we shall affirm that, O Divine Mother, I forgive everybody, including myself. O Divine Mother, I forgive everybody, including myself. So please don't think over कि आप किसको माफ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. Just simply affirm that, O Divine Mother, I forgive everybody, including myself. Now I request all of you कि आपके हाथ की पांचों उंगलियों को थोड़ा सा तान लीजिए, हमारे हाथ को थोड़ा स्ट्रेच कर लीजिए और हाथ की जो हथेली है, हाथ की हथेली को सिर्फ अपने तालू भाग पर, जो छोटे बच्चों का सर के ऊपर का जो नाजुक हिस्सा होता है, जो लपटप कर देता है या पैल्पिटेट करते रहता है, वहां पर रखें, हल्के से इसे दबाएं, धीरे 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 इसे गोल घुमाते रहें, धीरे 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 हाथ की हथेली से इस तालू भाग की स्किन को गोल घुमाएं, बहुत धीरे धीरे 7 से 8 बार हमें ये गोल गोल घुमाना है, मगर गिनना नहीं है, गिनती में न पड़े, बस आराम से इसे घुमाते रहें और घुमाते वक्त एक अफर्मेशन हमें लेना है 7 से 8 बार. इस अफर्मेशन को बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ, विनम्रता से कहें कि, ओ डिवाइन मदर, प्लीज गिव मी माय सेल्फ रियलाइजेशन. ओ डिवाइन मदर, प्लीज ब्लेस मी विथ माय सेल्फ रियलाइजेशन. I would request that with a sincere heart, we may have one request to Shri Mataji, that Shri Mataji, please help me to be in meditation. Shri Mataji, please bless me with my divine energy. Now lastly, I request all of you, अपने दाहिने हाथ को वापस गोद में रख लें, आंखों को कृपया बंद ही रखें, आंखें नहीं खोलें और जहां पर हमने अभी हाथ रखा था हमारे लिम्बिक एरिया पर, वहां आराम से अपने कंसंट्रेशन को लगाएं, जोर जबरदस्ती न करें, अपने अटेंशन को वहां स्टेबल करें और 15-20 सेकंड्स के लिए बस शांत बैठे रहें, कुछ भी न करें. Now I request all of you कि अपने दाहिने हाथ को पुनः तालू भाग, अपने लिम्बिक एरिया के पास ले आए. सबसे आखिरी में हमने जहाँ रखा था
और वहां से 1 इंच ऊपर उठा करके देखिए, बस 1 इंच। और देखें कि कहीं आपके तालू भाग से निकलती हुई और आपके हाथ में स्पर्श करती हुई किसी एनर्जी का फ्लो, थोड़ा सा ठंडा या थोड़ा सा गर्म, ऐसा किसी एनर्जी का फ्लो आपको फील हो रहा है। बहुत सटल ये फ्लो ऑफ एनर्जी हमारे अंदर होती है। राइट हैंड को नीचे ले, लेफ्ट हैंड से करते हैं। ये थोड़ा ठंडा भी हो सकता है या थोड़ा हल्का सा लुकवर्म, थोड़ा गर्म भी हो सकता है। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा, पर पहले इसको फील करें। अब आप दोनों हाथों को सीधा हवा में ऊंचे उठाइए। दोनों हाथों को सीधा हवा में ऊंचे उठाएं। प्लीज आंखें नहीं खोलें, हाथों की उंगलियों को एकदम खुला रखें और अपने आप से एक प्रश्न पूछें कि ओ डिवाइन मदर, इज दिस द डिवाइन एनर्जी विद इन मी? ओ डिवाइन मदर, इज दिस द डायनामिक एनर्जी विद इन मी? अब धीरे 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 दोनों हाथों को आप पुनः अपने गोद में ले आए और देखें कि कहीं दोनों हाथों के बीचों बीच हाथ की हथेली में आपको कुछ सर्कुलर मोशन जैसा घूमता हुआ फील हो रहा है। उसी तरह हाथों की उंगलियों के टिप्स पर आपको कहीं ठंडा या थोड़ी सी चुभन या कहीं हेवीनेस फील हो रहा है। एंड लास्टली बट ऑफ इम्पोर्टेंस, कि आपको जैसे हम लोग एक पावर नैप लेते हैं और अच्छी नींद हमें आ जाती है, उसके बाद हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन पूरा रिलैक्स हो जाता है, वैसे शांत रिलैक्स हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमारी विचारों की जो गति है वो भी धीरे धीरे काफी हद तक शांत हो गई होगी और कुछ सेकंड्स के लिए तो हमने फील भी किया होगा कि थॉट्स नहीं आ रहे। Now I request all of you कि आप अपने दोनों हाथ, if it is permissible in our culture, आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, अपने ही अंदर जो शक्ति है उसके लिए आप उनको थैंक्स करें। Let's be little respectful to the energy within, और धीरे 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 हम लोग अभी हाथ अपनी गोद में रखें, आंखों को हम आराम से खोल सकते हैं। हम लोगों को आज के इस एक्सपेरिमेंट में जो फील आया है कि हमें शांत लग रहा है, सो दैट्स अ फर्स्ट साइन दैट यू हैव एंजॉयड द मेडिटेशन। दूसरा, हमें इस तालु भाग में यदि कुछ थोड़ा सा ठंडा या थोड़ा सा लुकवर्म यदि हमें फील हो रहा है, तो ठंडा फील हुआ, इसका मतलब आपका जो मेडिटेशन है ये वर्कआउट हो गया है। हल्का सा गर्म है, इसका मतलब जो एनर्जी का फ्लो ऊपर की ओर आ रहा है उसके और आपके एनर्जी प्लेक्सस में थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है, बिकॉज इट क्लीन्स आउट। सो व्हाइल क्लीनिंग आउट इट प्रोड्यूसेस लिटिल हीट। फ्रिक्शन जब भी होता है तो थोड़ा सा हीट वो जनरेट करती है। So till it is clearing you out, ये हल्का सा गर्म आपको आते रहेगा, but after some time you will feel a cool breeze from your limbic area and in your hands also. हाथों में जो आपको सर्कुलर मोशन फील हुआ होगा, that's an indication कि your energy centers have started working. अब आपको करना क्या है? आपको इतना करना है कि कल से जो हमारे सेशन शुरू होंगे सुबह, वो सेशन तो आपको अटेंड करने ही है, पर रात में यदि आपको समय मिलता है तो सोने से पहले इसको जरूर करके देखें। बड़ी आसान 3 स्टेप्स मैंने आपके साथ शेयर की। फर्स्ट, राइट हैंड ऑन योर हार्ट, दैट आई एम अ प्योर स्पिरिट। राइट हैंड ऑन योर फोरहेड, saying that I forgive everybody and I forgive myself. The right hand on the limbic area, saying that O Divine Mother, bless me with my self realization. और उसके बाद में दोनों हाथ गोद में रख करके एक 5 मिनट के लिए आप शांत बैठ जाए।
at the end you would feel that you are completely relaxed and you may also feel the feel of energy within us. ये तो आज हमने सिर्फ आपको पहला स्टेप मेडिटेशन के बारे में सिखाया है. जैसे जैसे अगले सेशंस में आप एंटर करते जाएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि हमारा जो न्यूरल सिस्टम है उस पर कैसे एनर्जी का इम्बैलेंस क्रिएट होता है और बैलेंस पे हम लोग कैसे आते हैं, उसका भी एक आप एक्सपीरियंस आप लेने वाले हैं. There will be some medical experts joining on the session in some coming the sessions, और वो आपको इसके मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में कैसे implications, complications होते हैं और कैसे the meditation helps you to cure you entirely, इसके बारे में बातचीत करेंगे. हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस हमें कैसे हेल्पफुल हो सकती है फॉर इम्प्रोवाइजिंग अवर फिजिक, अवर ऑर्गन्स एज वेल एज अवर चक्रास एंड नाड़ीज. ये भी हम लोग आने वाले वीक में देखेंगे. आज के इस सेशन के एंड में मैं आपसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हम अगली स्लाइड में कुछ ये दिखाने वाले हैं जिसमें आपको स्लाइड्स दिखने वाले. सो आई रिक्वेस्ट द टेक्निकल टीम टू प्लीज स्विच ओवर टू द स्लाइड and to show the 3 websites on which there are online classes available. So आप लोग आपके समय के हिसाब से इन वेबसाइट्स पर जा सकते हैं. www.freemeditation.com, www.sahajoga.org and www.sahajaonline.com. इस पर आप अपने सहूलियत के हिसाब से जब भी आपको ध्यान करना हो आप लॉग इन हो जाएं और यहाँ पर जो लाइव सेशंस है आप उसमें लॉग इन करके मेडिटेशन को एंजॉय कर सकते हैं. बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो गूगल फॉर्म दिया हुआ है आप उसको जरूर भरें, क्योंकि आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म यदि भर करके हमारे पास आता है तो ही हमें आपके वैल्यूएबल फीडबैक समझेंगे और आपका फीडबैक आने पर ही आपको जो प्रेशियस ऑनलाइन सर्टिफिकेशन ऑफ दिस प्रोग्राम है उस ऑनलाइन सर्टिफिकेशन भी आपको कन्फर किया जा सकता है. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम. I request my technical team to complete this session now. I thank you one and all for joining us in this session and being patient with us. बीच में जो भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ उस टेक्निकल प्रॉब्लम को ओवरकम करके आप सब लोगों ने इस सेशन को अटेंड किया. So all the dignitaries from the institution, all the elite academicians, all the distinguished students, those who were with us till the end of the session, I thank you very much. Thank you one and all.